Hello friends, welcome back. You will again on my channel Maths की कक्षा. Here is Ketan Gaur from NIT Srinagar. This is our lecture number 6. In this lecture we are going to do some illustration on the last topics. क्योंकि वो topics थोड़े important topics हैं. Half angle formula and the area of triangle which other name is Heron's formula. तो इन सब पे हम थोड़े से illustrations करेंगे. Then after we move toward the one of the important property of triangle which is circumradius. तो without wasting the time, let's start with the video. Now the illustration number 1 of this lecture is, in this question we have given that in triangle ABC, triangle है ABC में, so सब first of all triangle draw कर लेते हैं. ABC triangle, this is an A, this is B and this is C. Now कहा गया है कि एक CD line draw करेंगे. This is an CD line और ये CD line is the angle bisector of this angle C. Means ये line इस angle को 2 equal parts में divide कर देगी and equal parts में divide करने के बाद this C becomes C by 2 and C by 2. Now we have to calculate the length of this CD. So this is our question, that CD is the angle bisector of this angle C and we have to calculate length CD, and this is a multiple choice type question. तो obviously this question is for JEE advanced में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां आपकी accuracy टेस्ट की जाती है. So first of all we have to calculate this CD. तो यहाँ से आप देखेंगे कि we have two triangles. इस लाइन ने CD लाइन ने इस complete ABC ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया. वन ट्राइंगल इज ADC एंड द अदर ट्राइंगल इज BDC. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC का एरिया ट्राइंगल ADC के एरिया के प्लस ट्राइंगल BDC के एरिया के इक्वल होगा. सो नाउ फ्रॉम हियर ट्राइंगल ABC का एरिया हम सिंपल लिख सकते हैं हाफ AB साइन C, बिकॉज साइन C एंगल में इसलिए लिए ताकि यहाँ भी हम साइन C ही एंगल में लेंगे, बिकॉज साइन C के टर्म्स में हमें आंसर देना है. सो यहाँ से साइन C हम लोगों ने चूज़ किया है. देन आफ्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. अब ADC ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? दिस इज द लेंथ B एंड दिस लेंथ इज कंप्लीट C एंड दिस इज लेंथ A. नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC ट्राइंगल का एरिया हाफ. Then we are going to include this angle, means this angle ADC angle. तो ADC angle include करना है. CD half CD into this is one side and this is B and sin C by 2. बिकॉज अगर ये 2 साइड्स हमने ली है तो एंगल ये होगा. सिमिलरली ट्राइंगल BDC के लिए अगर एंगल C by 2 लेना है तो वन साइड इज दिस साइड एंड अदर साइड इज दिस साइड. तो हाफ A मल्टीप्लाइड बाय CD इंटू साइन ऑफ C by 2. नाउ फ्रॉम हियर वी विल टेक sin C by 2 into CD common from the RHS, and one more thing, this half get cancelled with this half, and here in the LHS we get AB sin C is equals to CD multiplied by sin C by 2 common आ जाएगा A plus B. Now from here simply CD का value we will calculate, but before this sin C by 2 को हम sin C को लिख सकते हैं 2 sin C by 2 cos C by 2 is equals to CD dot sin C by 2 into A plus B. From here sin C by 2 get cancelled with this sin C by 2, and from here simply CD is equals to 2AB cos C by 2 upon A plus B. So this is the one value of CD. नाउ दूसरा वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर सेकंड वैल्यू साइन रूल अप्लाई करेंगे ताकि CD वैल्यू पता चल जाए. सो वी विल गोइंग टू अप्लाई द साइन लॉ इन ट्राइंगल AD एंड C. सो हियर साइन लॉ इन ट्राइंगल ADC, साइड CD अपॉन साइन A. सो फ्रॉम हियर CD अपॉन
साइन ए इज इक्वल्स टू दिस बी अपॉन इसके अपोजिट एंगल दिस ए डी सी एंगल, सो बी अपॉन एंगल ए डी सी साइन ऑफ एंगल ADC. So from here simply we get CD is equals to B sin A upon sine of angle ADC. So this is the simple value of CD. So these are the two answer of the value of CD. So ये बहुत easy question है and you have to solve this type of question within the topics. बिकॉज ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. अब हाफ एंगल फार्मूला से ये कहीं भी क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, बट वी हैव टू सॉल्व दिस बिकॉज एग्जाम जब आएगा तो एग्जाम में पर्टिकुलर साइन रूल या कोसाइन रो या फिर टेंजेंट रूल इन सब पे क्वेश्चन नहीं आएगा. सो वो क्वेश्चन जो होगा वो कई चैप्टर का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होगा. सो यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक साथ अप्लाई होते हैं. सो दिस इज द इलिस्ट्रेशन नंबर 1. Now in illustration number 2 we have given that in triangle ABC 2S is equals to the summation of all the lengths of a triangle. तो all the lengths का summation A plus B plus C ये 2S के equal होता है. and in triangle delta is equals to area of triangle और उसको Heron's formula के according लिखा जा सकता है S into S minus A into S minus B into S minus C. So these are the given information in the question and we have to calculate or prove or show that delta is less than or equals to S square upon 3 root 3. So this is the matter. इस मसले को सॉल्व करना है कि डेल्टा लेस देन और इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3 होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या करने वाले हैं, ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं. ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस सीरीज स्टडी कर चुके हैं, तो फ्रॉम देयर ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम होता है, ये हम सब जानते हैं. नाउ फ्रॉम हियर द टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक मीन आर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये 3 टर्म्स है, इन्हीं का हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे. सो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी टू दी पावर 1/3. फ्रॉम हियर वी गेट 3s माइनस 2s अपॉन 3 is greater than or equals to. now from here s minus a, s minus b and s minus c को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे आप तो डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा दिस बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमें मिल जाएगा. एंड s को अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो सिंपली s माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वैल्यू डेल स्क्वायर अपॉन s आ जाएगा. तो फ्रॉम हियर डेल स्क्वायर अपॉन s टू दी पावर 1/3. now from here I am going to solve this here. this is s upon 3 is greater than or equals to del square upon s to the power 1/3. बोथ साइड क्यूबिक कर देते हैं तो यहाँ बन जाएगा s क्यूब अपॉन 27 is greater than or equals to del square upon s. now by cross multiplication we get s to the power 4 upon 27 is greater than or equals to del square. now from here both side rooting कर देंगे तो simply we get that del square is less than or equals to s square upon 3 root 3. so we have to prove this और simply this छोटे से मेथड से हम यहाँ तक पहुँच गए कि डेल इज लेस देन और इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3. अच्छा, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके, बट द मेन कंसर्न हियर इज दैट कि ये जो कंडीशन निकल के आई ये किसी पर्टिकुलर डाटा वाले ट्राइंगल के लिए या फिर सभी ट्राइंगल्स के लिए ये कंडीशन होगी कि उसका डेल्टा हमेशा एस स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3 के इक्वल या उससे छोटा ही होगा. सो हियर इन द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, सिर्फ 2s और डेल्टा के बारे में गिवन था कि 2s इज द समीशन ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल.
तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए कुछ भी डाटा गिवन नहीं था। मीन्स दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्राइंगल्स, ये रिजल्ट हमें सभी ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई करना है। सो दिस इज एन जनरल फार्मूला फॉर ऑल द ट्राइंगल दैट डेल्टा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन 3√3 फॉर एनी ऑफ द triangle. So this is the illustration number 2. Now we are going to study our one of the important topic, which is circumradius, which is one of the important topic of properties of triangle. And then after, in the next lecture, we are going to study in radius, x radius, radii of the x circles, orthocenter and the other topics. Now let's start with the circumradius. So what is circumradius? ये चीज़ हम लोग फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, बट इन शॉर्ट कि सर्कम रेडियस क्या होता है. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अ कंप्लीट अबाउट सर्कम रेडियस. नाउ इन द गिवन ट्राइंगल दिस, सपोज दैट वी हैव गिवन इन ट्राइंगल ए बी एंड सी. आप कैपिटल लेटर से वर्टेक्स को भी डिनोट कर सकते हैं एंड एंगल्स को भी डिनोट किया जा सकता है. नाउ फ्रॉम हियर सर्कम रेडियस क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की ऑल थ्री वर्टेक्स को टच करे. तो ऐसा कब पॉसिबल है कि ट्राइंगल कि तीनों वर्टेक्स को टच करे सर्कल? ऐसा तब जब अगर सर्कल अंदर बन सकता है ऐसा कोई? नो, इट्स ओनली पॉसिबल एट द आउटसाइड ऑफ दिस ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के बाहर ही सिर्फ ऐसा सर्कल पॉसिबल है और वो कुछ इस तरह से सर्कल बनता है. अब सर्कल के यहाँ कुछ सेंटर होगा और ये जो पॉइंट है ये इसके सर्कमफेरेंस का पॉइंट है, एंड दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस एंड दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ दिस सर्कमफेरेंस. तो इसके सेंटर और इस पॉइंट की मीन्स दिस पॉइंट इज द सर्कमफेरेंस point at the circumference of this circle and this point is also the vertex of this triangle. So इस पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल R होता है एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो दिस इज कैपिटल R एंड दिस इज ऑल्सो कैपिटल R. सो इस ट्राइंगल को कहा जाता है सर्कम सर्कल, बिकॉज दिस सर्कल इज सब्सक्राइबिंग दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल को इस सर्कल ने सब्सक्राइब किया हुआ है एंड इसी ट्राइंगल इसी सर्कल की रेडियस को दिस कैपिटल R इज नॉन एज सर्कम रेडियस. नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस R? इस R का वैल्यू क्या होता है? जैसा कि हम साइन लॉ भी पढ़ चुके हैं, तो वहां पे ये हमने देखा था कि a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू 2r होता है. तो यहाँ से आप r का वैल्यू ये भी कह सकते हैं a अपॉन 2 साइन इज ऑल्सो इक्वल्स टू r. सो ये भी करेक्ट होगा ट्राइंगल के लिए. नाउ द फॉर्मूला ऑफ r इज इक्वल्स टू abc अपॉन 4 डेल्टा. दिस इज द वैल्यू ऑफ r. सर्कम रेडियस का वैल्यू जनरली a b c साइड्स के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है r का, जहाँ पे कोई भी एंगल इंक्लूडेड नहीं है. सिर्फ अगर आपको सारी साइड्स पता है, साइड्स सभी लेंथ पता है, तो आप r इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला. नाउ ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे ये फार्मूला जनरेट होता है? यू नो दैट इन द सम लास्ट लेक्चर्स वी स्टडीड दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ ab साइन c. आप शायद ये चीज जानते होंगे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्राइंगल का एरिया हाफ AB साइन C स्टडी किया है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन C? इन द साइन लॉ वी नो दैट C अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू 2r. नाउ फ्रॉम हियर साइन C का वैल्यू हो गया C अपॉन 2r. यहाँ पे साइन C का वैल्यू पुट कर देंगे तो दिस बिकम हाफ AB और साइन C बन जाएगा C अपॉन 2r. ये डेल्टा के इक्वल हो गया. नाउ फ्रॉम हियर डेल्टा इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 4r एंड r का वैल्यू सिंपली यहाँ से बन गया ABC अपॉन 4 डेल्टा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सर्कम रेडियस. ये सर्कम रेडियस का वैल्यू हो गया r इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 डेल्टा. तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि साइन लॉ में भी कुछ चेंजेस आएंगे, बिकॉज साइन लॉ पहले क्या था, a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 2r. दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल. नाउ इस 2r को रिप्लेस किया जा सकता है यहाँ से, तो 2 इंटू r का वैल्यू लिख देंगे ABC अपॉन 4 डेल्टा. तो फ्रॉम हियर इट बिकम्स ABC अपॉन 2 डेल्टा. तो दिस
3 values are also equal to ABC upon 2 delta. So this is our short and important topic circumradius. काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है circumradius, तो आप नोट्स में आप इंक्लूड करें एंड यू हैव टू मार्क स्टार ऑन दिस टॉपिक circumradius. सो अब हम इस टॉपिक पे इलिस्ट्रेशंस करेंगे जो हम इन रेडियस एंड रेडाई ऑफ एक्स सर्कल स्टडी कर लेंगे, बिकॉज इन सब पे जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एंड वैसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. बिकॉज अगर जेईई मेंस में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली तो वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स पे आने वाला है. सो वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक आफ्टर कंप्लीटिंग circumradius in radius and radii of x circle. So this is the short video. If you like this video, please share it with your friends, subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much.